السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شاہد رحمانی۔ آج مورخہ 30 اپریل ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں روزانہ اردو نیوز بلیٹن دوربین۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی اہم اور بڑی خبروں کے ساتھ۔ بنگال میں اقتدار کی جنگ عروج پر 90% ووٹنگ کے بعد ایگزٹ پولز میں ٹی ایم سی اور بی جے پی کے درمیان سخت مقابلہ، فیصلہ 4 مئی کو۔ نفرت انگیز تقاریر پر سپریم کورٹ کا دو ٹوک فیصلہ۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ ایسے معاملات پر قانون پہلے ہی سے موجود ہے، نئے قانون کی ضرورت نہیں۔ اہم ریمارکس نے بحث چھیڑ دی۔ چھتیس گڑھ بورڈ نتائج میں طالبات پھر آگے۔ 10ویں میں 77 اور 12ویں میں 83% کامیابی۔ طالبات نے سبقت برقرار رکھی، کئی طلباء نے نمایاں کارکردگی دکھائی۔ دہلی میئر الیکشن میں بی جے پی کی آسان جیت، پرویش واہی بھاری اکثریت سے کامیاب۔ عام آدمی پارٹی کے میدان سے باہر رہنے پر مقابلہ ایک طرفہ ہو گیا۔ ٹی ڈی پی میں بڑی سیاسی تبدیلی۔ چندرا بابو نائیڈو نے بیٹے لوکیش کو کارگزار صدر بنایا، پارٹی کو منظم رکھنے اور عوام سے جڑے رہنے کی ہدایت۔ 90 سالہ خاتون کا کیس 2046 تک ملتوی۔ حد عزت مقدمہ 20 سال کے لیے ٹل گیا۔ عدالت نے کہا انا کی لڑائی نظام انصاف پر بوجھ بن رہی تھی۔ ایس سی او اجلاس پر سیاسی ہنگامہ تیز۔ راجناتھ سنگھ کے بیان پر کانگریس پارٹی کا حملہ۔ پاکستان کو کلین چٹ دینے کا الزام، سیاسی ماحول گرم۔ ابنائے ہرمز پر قطر کا سخت انتباہ۔ قطر نے کہا ہے کہ اسے سودے بازی کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ امریکہ ایران مذاکرات بدستور تعطل کا شکار۔ لبنان میں حزب اللہ کے خلاف بڑی کارروائی۔ اسرائیل نے اہم زیر زمین سرنگ تباہ کرنے کا دعویٰ۔ اب ڈرون خطرے سے نمٹنے پر توجہ مرکوز۔ چین نے اربوں ڈالر کی اے آئی ڈی روک دی۔ میٹا کے ساتھ 2 ارب ڈالر کا معاہدہ منسوخ۔ قومی سلامتی اور ڈیٹا خدشات نے عالمی ٹیک حلقوں کو چونکا دیا۔ آپ ہمیں یوٹیوب پر دیکھنے کے علاوہ ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ آپ فکر و نظر ٹی وی کا اردو پروگرام دوربین دیکھ رہے ہیں۔ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات، جس کی 294 نشستوں پر 2 مرحلوں میں ووٹنگ مکمل ہو چکی ہے۔ اب فیصلہ کن مرحلہ میں داخل ہو چکا ہے۔ ووٹوں کی گنتی 4 مئی کو ہوگی۔ تاہم ایگزٹ پولز نے سیاسی ماحول کو پہلے ہی گرم کر دیا ہے۔ مختلف ایجنسیوں کے مطابق حکمراں جماعت ترنمول کانگریس اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے درمیان سخت مقابلہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پیپلز پلس جیسے ادارے ممتا بنرجی کی قیادت میں ٹی ایم سی کو واضح برتری دے رہے ہیں، جہاں 177 سے 197 نشستوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ دوسری جانب کچھ ایجنسیوں نے بی جے پی کو آگے دکھایا ہے اور 150 سے زائد سیٹوں کا امکان ظاہر کیا ہے۔ سیاسی مہم میں ممتا بنرجی اور ابھیشیک بنرجی نے بھرپور حصہ لیا، جبکہ بی جے پی کی جانب سے نریندر مودی اور امیت شاہ سمیت مرکزی قیادت سرگرم رہی۔ اب تمام ناظرین 4 مئی پر ہیں کہ حتمی نتیجہ سامنے آئے گا اور پتہ چلے گا کہ اقتدار کس کے حصے میں جاتا ہے۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے نفرت انگیز تقاریر کے معاملے پر ایک اہم اور دو ٹوک فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ اس حوالے سے موجودہ قوانین کافی ہے اور کسی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ جسٹس وکرم ناتھ اور جسٹس سندیپ مہتا پر مشتمل بینچ نے کہا ہے کہ یہ دعویٰ غلط ہے کہ اس میدان میں قانونی خلا موجود ہے۔ عدالت کے مطابق موجودہ قوانین، جن میں آئی پی سی اور دیگر ضابطہ شامل ہے، ایسے تمام جرائم کو کور کرتے ہیں جو فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو متاثر کرے۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اگر مستقبل میں قانون سازی کی ضرورت ہو تو یہ کام پارلیمان کا ہے، عدلیہ کا نہیں۔ ساتھ ہی پولیس کو ہدایت دی گئی کہ ایسے معاملات میں ایف آئی آر درج کرنے میں کوتاہی نہ برتی جائے۔ چھتیس گڑھ بورڈ نے 10ویں اور 12ویں کے نتائج جاری کر دیے ہیں اور اس سال بھی طالبات نے نمایاں برتری حاصل کی ہے۔ 10ویں جماعت میں کامیابی کی شرح 77.15% رہی، جبکہ 12ویں میں یہ شرح
83.04% रही। आदद शुमार के मुताबिक 10वीं में तालिबात की कामयाबी 81% और तलबा की 72% रही, जबकि 12वीं में लड़कियों की शरह 86.4% और लड़कों की शरह 78.8% रही। नुमाया कारकर्दगी में 10वीं में 3 तलबा ने 99% नंबर हासिल किए, जबकि 12वीं में जिगिरिया सो वर्मा ने 98.6% के साथ पहली पोजीशन हासिल की। नताइज जारी होने के बाद तलबा और उनके अहला खाना में खुशी की लहर दौड़ गई है। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के इंतखाब में भारतीय जनता पार्टी ने वाज़ेह बरतरी के साथ कामयाबी हासिल कर ली है। बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वाही भारी अक्सरियत से मेयर मुंतखब हुए, जिससे पार्टी की मजबूती और मजबूत पोजीशन मजीद वाज़ेह हो गई। बुध को होने वाली वोटिंग में कुल 165 वोट डाले गए, जिनमें से 156 वोट बीजेपी के हक में आए, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार को महज 9 वोट मिल सके। आम आदमी पार्टी के इंतखाब में हिस्सा न लेने के फैसले ने मुकाबले को तकरीबन एक तरफा बना दिया। इसका फायदा बराह रास्त बीजेपी को मिला। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इस इंतखाब में कुल 273 वोटर्स शामिल थे, जिनमें मुंतखब काउंसलर, अरकान पार्लिमान और नामजद अरकान शामिल थे। जीत के लिए 137 वोट दरकार थे, जो बीजेपी ने बासानी हासिल कर लिए। प्रवेश वाही रोहनी इलाके से 3 बार मेयर मुंतखब होने वाले काउंसलर हैं और इससे कबल लीडर ऑफ हाउस की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। पार्टी ने उन्हें आखिरी वक्त में उम्मीदवार बनाया, जिसका फैसला कामयाब साबित हुआ। अपने बयान में उन्होंने दिल्ली को साफ और बेहतर बनाने के अज़्म का इजहार किया है और शहरी सहूलियात को तरजीह देने की बात कही है। बीजेपी क़यादत को उम्मीद है कि इस कामयाबी से मरकज और बल्दियाती इदारों के दरमियान बेहतर तालमेल कायम होगा। मेयर का ओहदा 1 साल के लिए होता है। इस दौरान शहरी तरक्की के मंसूबों पर अमल दरामद अहम जिम्मेदारी होगी। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक ये जीत आइंदा बल्दियाती सियासत पर भी असर डाल सकती है। आंध्र प्रदेश में बरसर इक़्तिदार तेलुगु देशम पार्टी ने तंजीमी सतह पर बड़ी तब्दीली करते हुए नई कमेटियों का ऐलान किया है। वज़ीर आला चंद्राबाबू नायडू ने अपने बेटे और IT वजीर राणा लोकेश को पार्टी का कारगुजार सदर मुकर्रर कर दिया है, जो एक अहम सियासी कदम माना जा रहा है। नायडू ने नई टीम को हल्फ दिलाते हुए कहा कि पार्टी में तजर्बा और नौजवानों की क़यादत के दरमियान तवाज़ुन कायम रखा जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि ज़मीनी सतह पर काम करने वाले कारकुन को भी अहम जिम्मेदारियां दी गई है, ताकि तंजीम को मजीद मजबूत बनाया जा सके। केडर ही लीडर है के उसूल को दोहराते हुए नायडू ने पार्टी में इत्तिहाद और नज़्म ज़ब्त बरकरार रखने की अपील की। उन्होंने हुकूमत की कारकर्दगी का जिक्र करते हुए कहा कि फलाही स्कीमें और तरक्याती मंसूबे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपाशी बिजली और बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे प्रोलाम और अमरावती पर काम जारी है। साथ ही उन्होंने अपोजिशन पर इल्जाम लगाया कि वो गलत मालूमात फैलाकर रुकावटें खड़ी कर रही है। नायडू ने पार्टी के नुमाओं को हिदायत दी कि वो आवाम से जुड़े रहें और तनाज़ात से दूर रहें। उन्होंने आने वाले इंतखाबात के लिए तैयारी पर भी जोर दिया और कामयाबी का इजहार किया। सियासी हलकों में इस फैसले को पार्टी के मुस्तकबिल की हिकमत अमली के तौर पर देखा जा रहा है। చేయబెట్టుకొని ప్రమాణం చేయాలి ఆత్మసాక్షిగా. తెలుగుదేశం పార్టీ ఆశయాలకు పవిత్ర లక్ష్యాలకు मुंबई हाई कोर्ट ने हत्या इज्जत के एक मुकदमे में गैर मामूली फैसला सुनाते हुए केस को 20 साल के लिए मुलतवी कर दिया। इस मुकदमे की अगली समाअत अब 2046 में होगी, जो अदालती तारीख में एक अनोखा कदम समझा जा रहा है। यह केस 90 साल खातून और दीगर फरीकैन की जानिब से 2017 में दायर किया गया था, जिसमें 20 करोड़ रुपये मुआवजा का मुतालबा किया गया था। जस्टिस जितेंद्र S जैन ने समाअत के दौरान सख्त रिमार्क्स देते हुए इसे अना की लड़ाई करार दिया। उन्होंने कहा है कि इस तरह के तनाज़ुआत अदालती निज़ाम को मुतासिर करते हैं और अहम मुकदमात को पीछे धकेल देते हैं। अदालत ने पहले फरीकैन को मामला हल करने के लिए गैर मशरूत माफ़ी की तजवीज़ भी दी थी, लेकिन पेशरफ न हो सकी। जज ने वाज़ेह किया कि सिर्फ उम्र की बुनियाद पर किसी केस को तरजीह नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा है कि अदालत को उन मुकदमात पर तवज्जो देनी चाहिए जो वाक़ई फौरी नौइयत के हो। यह मुकदमा 2015 के एक वाक़ये से मुताल्लिक है, जिसने तवील कानूनी शक्ल इख्तियार कर ली। अदालत के इस फैसले ने कानूनी हलकों में नई बहस छेड़ दी है। माहिरीन के मुताबिक यह फैसला अदालती बोझ कम करने की एक मिसाल भी हो सकती है।
मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के बयान पर सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने उन पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने SCO इजलास में पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा है कि यह मौक़िफ़ वज़ीर आज़म की मंजूरी से इख्तियार किया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मरकज़ नहीं रहा। दूसरी जानिब राजनाथ सिंह ने अपने खिताब में दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी इत्तेहाद पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरहद पार दहशतगर्दी को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और इस पर दोहरे मेयार नहीं होने चाहिए। अगरचे उन्होंने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, लेकिन बयान में रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का हवाला दिया गया। उन्होंने भारत के सख्त मौक़िफ़ को भी दोहराया कि दहशतगर्दी के मराकिज़ अब महफूज नहीं है। कांग्रेस ने इसे खारजा पॉलिसी की कमज़ोरी करार दिया। सियासी माहिर का कहना है कि यह मामला आने वाले में मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। कौमी सलामती जैसे मौजू पर इख्तिलाफ राय ने सियासी माहौल को मजीद गर्म कर दिया है। आतंकवाद का न कोई देश होता है और न कोई धर्म। टेररिज्म और इनोसेंट ह्यूमैनिटेरियन लॉस के लिए कोई भी वजह, चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, जायज नहीं है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान कतर ने अहम बयान जारी किया है। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान ने कहा कि अपना हुर्मुज़ को सौदेबाजी के पत्ते के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इस अहम समुद्री रास्ते को आलमी तिजारत के लिए नहायत हसास करार दिया। यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात तवील का ताअत्तुल का शिकार है। अपना हुर्मुज़ आलमी तेल की तरसील का एक अहम जरिया है जहाँ किसी भी कशीदगी के आलमी असरात मुरतब हो सकते हैं। कतर ने जोर दिया है कि इस रास्ते को जियोपॉलिटिकल तनाज़ात से दूर रखा जाए। दूसरी जानिब ईरान ने अमेरिका पर बहरी मुदाखलत के इल्ज़ाम आयद किए हैं। ईरानी हुक्काम ने अक़वाम मुत्तहिदा पर इस मामले पर बाज़ाब्ता शिकायत भी दर्ज कराई है। सिफारती सतह पर मुख्तलिफ ममालिक कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। माइन के मुताबिक सूरत हाल इंतहाई नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है। अगर कशीदगी बढ़ी तो आलमी मईशत भी उसके असरात पड़ सकते हैं। इसराइल ने जनूबी लुबनान पर हिजबुल्लाह के एक बड़े सुरंग नेटवर्क को तबाह करने का दावा किया है। इसराइली फौज के मुताबिक इस सुरंग तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा और 25 मीटर गहरी थी और इस कार्रवाई में भारी मिकदार में धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। इसके असरात जल्जले की सूरत में भी महसूस किए गए। फौज का कहना है कि सुरंग ईरान की मदद से तामीर की गई थी और इसमें हथियारों का बड़ा जखीरा मौजूद था। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि अब अगला हदफ ड्रोन खतरे को खत्म करना। उन्होंने वाज़ेह किया है कि यह कार्रवाई अभी मुकम्मल नहीं हुई है और मजीद इक़दाम किए जाएंगे। सुरंग के अंदर कई कैमरे, राहदारी और दीगर सहूलियात मौजूद थी। इसराइली फौज के मुताबिक ये अब तक दरियाफ्त होने वाली सबसे अहम सुरंगों में से एक थी। यह कार्रवाई खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ा सकती है। मैंने कहना है कि इससे इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान तनाव में इजाफा होगा। इलाकाई सूरत हाल पर आलमी बिरादरी की गहरी नज़र है। चीन ने AI डील मनसूख कर दी। चीन ने कौमी सलामती के खदशात के तहत मेटा और मॉस के दरमियान $2 अरब की AI डील मनसूख कर दी। यह फैसला चीन के नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन की जानिब से किया गया। हुक्काम के मुताबिक इस मुआहदे से हसास टेक्नोलॉजी और डेटा के बैरूनी ममालिक मुंतकिल होने का खतरा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मॉस कंपनी के चीन से ताल्लुकात इस फैसले की एक बड़ी वजह बनी। चीनी हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि वो अपनी टेक्नोलॉजी और वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेगी। इस फैसले के तहत दोनों कंपनियों के दरमियान तमाम मुआहदे ख़त्म किए जाएंगे। माहिर का कहना है कि इससे आलमी टैक्स सरमायाकारी पर असर पड़ सकता है। सरहद पार मुआहदों पर निगरानी मज़ीद सख्त होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इक़दाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब AI टेक्नोलॉजी आलमी सतह पर स्ट्रेटजिक अहमियत इख्तियार कर चुकी है। बड़ी ताकतें अब टेक्नोलॉजी को कौमी सलामती से जोड़ रही है। तजर्बाकारों के मुताबिक मुस्तक़बिल में इस नौइयत के फैसले मज़ीद देखने को मिल सकते हैं। फ़िक्र नज़र टीवी की गुज़िश्ता पेशकश में एहतशाम ज़फ़र, अब्दुल्ला, अहमदुल्ला, अहमद हुसैन, अब्दुस्समद साहिबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रिया अदा करते हैं। हम आप तक पहुँचाते हैं सबसे अहम खबरें, वो भी दूरबीन की गहरी नज़र से। अगले बुलेटिन तक अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आप मुझसे, हमारे साथियों से फेसबुक पर भी राब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है फ़िक्र नज़र टीवी। शुक्रिया।